Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, I am Wajid Hussain, lecturer in Southern Institute of Southern Punjab. Our subject is Operation Management and lecture is 7. The topic is Capacity Planning Process. Table of contents are capacity planning process, planning over a time horizon, developing capacity alternative, developing capacity strategies, evaluate alternatives, planning services capacity, assumption of cost, volume analysis and analysis, and learning object, identify and define the capacity planning process, and define the planning over the time horizon, and defining developing capacity alternative, and define the developing capacity strategies, evaluating alternative and planning service capacity. After discussion, this lecture, you will be able to understand the capacity planning process, planning over time horizon, developing capacity alternative, developing capacity strategy, evaluating alternative, and planning service capacity. And what is capacity? In the previous lecture, you have discussed and you have learned the capacity can be defined as the maximum output rate that can be achieved by a facility. The facility may be an entire organization. कैपेसिटी क्या चीज़ है कि मैक्सिमम आउटपुट जब हम हासिल करते हैं, यानी एक गिलास, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, गिलास है फुल ऑफ वाटर, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है वाटर की? कैपेसिटी इज द मैक्सिमम आउटपुट रेट ऑफ प्रोडक्शन या सर्विसेज। कैपेसिटी क्या है जी? मैक्सिमम आउटपुट रेट ऑफ प्रोडक्शन और या सर्विसेज, यानी एक मशीन है कि वो मैक्सिमम कितनी प्रोडक्ट बना सकती है, ये उसकी कैपेसिटी है, कितने यूनिट बना सकती है। And capacity is the maximum output rate of the production and service facility. Capacity also include equipment, space और implied skills. Capacity में includes equipment भी include होता है, space भी और implied skills भी. We have already learned this. And now is the capacity planning process. What is capacity planning process? The capacity planning process depend on the stages of this planning process. Is your steps of this planning process is forecast demand, compute rated capacity, compute needed capacity, develop alternative plan, evaluate capacity plan, select best capacity plan, quantitative factors, for example cost, qualitative factor, for example skills, and implement best plan. This is the process of capacity planning. And forecast demand, the first is the forecast demand. Forecast demand refers to the process of predicting the future demand for the firm's product. यानी फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है, ये फोरकास्ट डिमांड है। यानी अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितने आपके यूनिट्स बन रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में कितनी डिमांड इसकी इंक्रीज हो सकती है। यानी अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करें, स्टार्ट में तो उसकी डिमांड इतनी नहीं होगी, कम यूनिट सेल होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के बढ़ने के साथ साथ, यानी 5 ईयर्स का फर्क के फोरकास्ट आप बनाते हैं, तो आपको वो फोरकास्ट बनानी पड़ेगी कि प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी कि कितनी सेल हमारी, कितने यूनिट सेल हो सकते हैं 5 साल तक, हर साल कितनी इसमें ग्रोथ आ सकती है। दिस इज ए फोरकास्ट डिमांड। Forecasting comprised of series of steps that involve the anticipation of demand for a product of future under both controllable and non-controllable factors के तहत फोरकास्ट की डिमांड प्रिडिक्शन की जाती है। Compute rated capacity, or compute rated capacity is the second step. What is the meaning of compute rated capacity? It means that a machine's rated capacity is maximum rated that it can be used to lift the weakest possible configuration. कि उसके weakest configuration कितनी के कितनी और maximum capacity कितनी है. An example for the excavator, the rated capacity is maximum loaded that can be lifted over site at full reach on the maximum allowable slope. यानी वो maximum कितना
ट्रेटेड कितना क्या कितनी वो कैपेसिटी वो रखती है, कितना वेट वो, अगर कोई वेट मशीन है तो उसकी कैपेसिटी कितनी, वो कितना वेट वो उठा सकती है। तो एक अगर मशीन लोड उठाने वाली है ये, तो उसकी रेटेड कैपेसिटी कितनी कि वो कितना जो है ना लोड उठा सकती है। And compute needed capacity is the requirement of the capacity. The capacity requirement planning is the process by which company figures out how much it needed to produce, कि कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी कितना ज़्यादा ये इसको ज़रूरत है प्रोड्यूसिंग की, एंड डिटरमाइन if it is capable of meeting those production goals small business must conduct. Capacity requirement planning regularly to keep up with changing in the supply and demand. तो वो नीड अप्स एंड डाउन्स होती रहती है, इसमें चेंजिंग आती रहती है। तो कितनी कैपेसिटी की नीड है, और ये इस कंप्यूट नीडेड कैपेसिटी का मीनिंग ये है, इस ये यानी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग है। एंड डेवलप अल्टरनेटिव प्लान्स, अल्टरनेटिव प्लान को डेवलप किया जाता है। वंस ए कंपनी हैज आइडेंटिफाइड इट्स कैपेसिटी रिक्वायरमेंट फॉर द फ्यूचर, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डेवलप अल्टरनेटिव वेज टू मॉडिफाई इट कैपेसिटी, के उसको मॉडिफाई करने के लिए अल्टरनेटिव प्लान किए जाते हैं। जब एक नीड का पता चल जाता है, जब रिक्वायरमेंट का पता चल जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप उसका है कि उसमें अल्टरनेटिव प्लान डेवलप किए जाते हैं। एवुलेट कैपेसिटी प्लान, हाँ जी, एवुलेशन कैपेसिटी प्लान को एवुलेट किया जाता है कि उसको जो है ना एक्सेस किस तरह किया जाता है, जो करंट कैपेसिटी है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी कैपेसिटी डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोसेस इज असेसिंग एग्जिस्टिंग कैपेसिटी फॉर एनी गिवन कंटेक्स्ट, यानी जो एग्जिस्टेंट कैपेसिटी है उसको एक्सेस किया जाता है, असेस किया जाता है, तो इसको एवुलेट ऑफ कैपेसिटी प्लान करते हैं। उसके बाद सिलेक्ट बेस्ट कैपेसिटी प्लान, तो जो एवोल्यूशन के बाद हम जो बेस्ट प्लान होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। कैपेसिटी, यू नो वेल, द कैपेसिटी प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द production capacity needed and organization to meet the changing demand of the product. In the context of capacity planning, design capacity is the maximum amount of work that an organization is capable of completing a given period, के given period में एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी कैपेबल है कि ये कंप्लीट कर सकती है। तो dear students, select best capacity plan. We select the best plan which is suitable for our organization. And the qualitative factors cost is also is the evaluate the capacity plan. In evaluation, we two type of evaluation: quantitative and qualitative. Quantitative factors are decision outcomes that can be measured, कि क्वांटिटेटिव में हम डिसीजन करते हैं जो मतलब जो हम मेजर होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव फैक्टर्स आर मोरल, sorry, qualitative factors. We are discussing qualitative factor. Qualitative factors are skills and morale of the employees, and the quantity and also qualitative factors are decision outcomes that can be measured. Example, qualitative factors are, we were also discussing qualitative factors are the morale, the impact of implies morale of adding break room to the production area,
What impact of the morale is of the student of the employee? Sorry, qualitative factors maybe include the no you're discussing qualitative factor. Qualitative factors may include effect on employees' morale. They are also qualitative factor is known as the impact effect of the employee morale, schedule, and other internal elements. What is the impact of morale of the employees and the relationship with the and commitment to the supplier कि उनके कमिटमेंट कितने हैं या रिलेशन सप्लाई के साथ कितने हैं द इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर कस्टमर कि उनका इफेक्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कस्टमर पे क्या है लॉन्ग टर्म फ्यूचर इफेक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इफेक्ट है दिस इज क्वालिटेटिव फैक्टर्स and the quantitative factor is the well there is the cost is main cost revenue etc the quantitative factor. Quantitative factor reach it's all about the numbers. It use mathematical analysis and data to shed light on the important statistic about the your business and the market. यानी इसमें क्वांटिटेटिव में हम डाटा देखते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट की क्या पोजीशन है. This type of data found are factors such as multiple choices question can be used and multiple question can be used. Implement best know the implement best plan. The best once a key personnel are aware of the best plan, then they must held accountable for the implement it. Here are some steps of developing the best plan. Do your homework is complete. Share your information with the others. Define your metrics. Manage your changings. They are the best plan steps. Modify and customize for your business. And the planning over time. We plan over time, a horizon, the long range planning, intermediate range planning, short range planning. The long range planning is add facilities, add long lead time equipment. तो लॉन्ग रेंज में प्लानिंग में हम फैसिलिटीज़ को ऐड करते हैं और टाइम को और इंटरमीडिएट सब कंट्रैक्ट ऐड इसमें सब कंट्रैक्ट ऐड होते हैं इक्विपमेंट ऐड शिफ्ट एटसेट्रा एंड ऐड पर्सनल बिल्ड ए यूज इन्वेंट्री और इंसान जो एम्प्लॉयज बनाते हैं वो इन्वेंट्री इसमें यूज़ होती है और शॉर्ट टर्म मॉडिफाइड कैपेसिटी में लिमिटेड ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं और शॉर्ट रेंज यूज़ कैपेसिटी में शेड्यूल जॉब्स शेड्यूल पर्सनल और एलोकेट मशीनरी. ये दो टाइप्स की हैं प्लानिंग ओवर टाइम होरिजन के. एक तो मॉडिफाई कैपेसिटी एक यूज़ कैपेसिटी के लिहाज से. एंड द सम पॉसिबल ग्रोथ ऑफ पैटर्न. In the first graph, there is a growth increasing with volume and time, and in the second graph, the decline, and in the third graph, the cyclic up and down, and in the last, the stable line shows. Developing capacity alternative, design flexibility into system, take stage of life cycle into account, take big picture approach to capacity change, prepare to deal with capacity chunk. एक बिग पिक्चर का मतलब है कि एक जिस तरह इंसान है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेनी, ये मशीन है या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये कोई प्रोडक्ट है, पूरी फुल इंफॉर्मेशन लेनी और प्रिपेयर टू डील विद कैपेसिटी चंक. टोटल जो
कैपेसिटी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, अटेम्प्ट टू स्मूथ आउट कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, और कैपेसिटी रिक्वायरमेंट को स्मूथ आउट करना और आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल ऑपरेटिंग लेवल के मैक्सिमम ऑपरेटिंग लेवल क्या हो सकता है, दिस इज कैपेसिटी अल्टरनेटिव्स, एंड चूज अ स्ट्रेटजी इफ एक्सपेंशन इज इन्वॉल्व। स्ट्रेटजी हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है अगर इसको एक्सपेंड करना है, और डेवलपिंग कैपेसिटी स्ट्रेटजी इज अ डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी into system. The long-term nature of the many capacity decision are the risk inherent in long-term forecast suggest potential benefits for the designing flexible system. In long term अगर हम प्लानिंग करते हैं उसमें रिस्क भी होते हैं और लेकिन वो हमारे लिए बेनिफिशियल ज़्यादा होती है। Design flexible into system, for example, provision of future expansion in the original design of the structure frequently can be obtained at a small price compared to the what I would cost of removal and existing structure and did not have such a provision। कि अगर लॉन्ग टर्म हमारे हमने एक्सपेंशन करना हो किसी स्ट्रक्चर को तो वो हमारे लिए इजी है बजाय उसको रिमूव करके दोबारा उसको बनाना। फॉर एग्जांपल फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द रेस्टोरेंट, जिस तरह हमने रेस्टोरेंट अगर उसमें आप एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए आपको पहले ही एक बड़ी ज़मीन खरीदनी पड़ेगी उसके लिए, फिर अगर आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। न्यू गोल्फ कोर्स में स्टार्ट एज 9 होल्स ऑपरेशन, अगर जिस तरह गोल्फ में 9 होल होते हैं अगर आपने 18 करने हैं तो ज़ाहिर है आपको प्लानिंग ऑलरेडी पहले से ही फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उस ग्राउंड में कितना बड़ा हो कि उसमें 18 होल हो सकें। दिस इज द डेवलपिंग कैपेसिटी स्ट्रेटजी। टेक स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इनटू अकाउंट into introduction phase. It can be difficult to determine both the size of market and the organization eventual share of that market। ये मुश्किल हो जाता है कि साइज को मार्केट को देखना, शेयर को मार्केट के शेयर को। therefore organization should be cautious in making large inflexible capacity investment, तो inflexible capacity investment करती है organization। In the growth phase the overall market may be experience rapid growth phase में आपको पता है कि प्रोडक्ट की ग्रोथ phase में rapidly growth हो रही होती है। However the real issue is rate that with the organization's market share grow, इशू ये कि कौन सी मार्केट ग्रो कर रही है विच में बी मोर या लेस देन द मार्केट रेट, और मार्केट में किसका ज़्यादा कम रेट होगा डिपेंडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज के, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज के डिपेंड करता है कि किसने ग्रोथ इम्प्रूव करनी है और किसने नहीं करनी है। ये आर डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेटजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। In maturity phase the size of the market level of an organization tends to have stable market share। मेच्योरिटी फेज में आपको पता है टॉप पे जो ग्राफ बनता है वो मेच्योरिटी प्रोडक्ट की लाइफ की मेच्योरिटी होती है, और उससे पहले ग्रोथ हो रही होती है और यहाँ वो स्टेबल हो जाती है, उससे ग्रोथ नहीं हो सकती बल्कि उससे डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। The organization may still be able to increase profitability by reducing cost and making full use of capacity। Organization still able to increase profit, organization की profit increase होती है by reducing cost कम हो जाती है and making full use of, और full use of capacity का होता है क्योंकि ये maturity phase है। economic of scale if the output rate is less than the optimal level, अगर आउटपुट रेट ऑप्टिमल लेवल से कम हो, इंक्रीजिंग आउटपुट रेट रिजल्ट इन द डिक्रीजिंग एवरेज यूनिट कॉस्ट, और आउटपुट अगर इंक्रीज अगर ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि एवरेज कॉस्ट कम पड़ रही है। यानी अगर आपने कॉस्ट लगाई है किसी चीज़ पर, अगर आउटपुट उसकी ज़्यादा आती है तो ज़ाहिर कॉस्ट कम बढ़ जाती है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है उससे 100 यूनिट आपने बनाए हैं, उसी इन्वेस्टमेंट से अगर आपके 150 या 125 यूनिट बनते हैं तो वो पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ जाएगी। Diseconomies of scale if the output rate is more than the optimal level, अगर output rate ज़्यादा optimal level है, increase the output rate result in the increasing average cost to unit। तो उससे ये होगा कि अगर मतलब आउटपुट भी ज़्यादा हो रहा है और एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है,
ये है डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल ये है कि कॉस्ट डिक्रीज होगी और इंक्रीज होगा। डेवलपिंग कैपेसिटी स्ट्रेटजीज इन द डिक्लाइन स्टेज। अब लास्ट स्टेज होती है डिक्लाइन स्टेज प्रोडक्ट की ना, लाइफ साइकिल की। इन द डिक्लाइन फेज द ऑर्गेनाइजेशन इज फेस्ड विद अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। इसमें ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी का ड्यू टू द डिक्लाइनिंग डिमांड की वजह से वो उसको फेस करती है अंडर यूटिलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एलिमिनेट द एक्सेस कैपेसिटी बाय सेलिंग इट। ऑर्गेनाइजेशन में एलिमिनेट ख़त्म कर सकती है एक्सेस कैपेसिटी, ज़्यादा कैपेसिटी, बाय सेलिंग इट, इसको बेचने से, या बाय द इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज। तो डिक्लाइनिंग स्टेज में वो उसको पता है कि प्रोडक्ट मेरी अब ख़त्म हो जानी है, डिक्लाइन हो जानी है, तो वो न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विसेज को स्टार्ट कर देती है। Evaluating alternative product units have an optimal rate of output for the minimum cost है optimal रेट गेन कर रहे हैं, जैसे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है और रेट ऑफ आउटपुट है। मिनिमम कॉस्ट है और मिनिमम कॉस्ट से रेट आउटपुट हमारे पास आ रहा है। Minimum cost and optimal operating rate function size of the production unit and the average cost per unit. Average cost per unit, स्मॉल प्लांट में एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और आउटपुट कम है। इस तरह मीडियम में एवरेज कॉस्ट भी ज़्यादा है, आउटपुट आउटपुट कम है। और हमारे पास जो लार्ज प्लांट है, अब आउटपुट मैक्सिमम आ रहा है और एवरेज कॉस्ट इसमें कम आ रही है। जिस तरह मैं पहले भी जिक्र किया था कि हमारे पास आउटपुट अगर ज़्यादा है और कॉस्ट उसकी कम होती है ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से। कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस ब्रेक इवन पॉइंट टेक्निक्स for the evaluating process and equipment alternative objective, find the point at which total cost equal to total revenue। कि हमारे पास अगर टोटल कॉस्ट बराबर आ जाए टोटल रेवेन्यू, यानी हमने अगर फर्ज किया 1 करोड़ लगाया तो रेवेन्यू 1 करोड़ का आ जाए, तो दोनों बराबर आ गई, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट होता है। assumption revenue and cost are related linear to volume, all information is known with certainty and no time value of money। break even point, break even analysis, fixed costs that continue even if no units are produced। तो फिक्स्ड कास्ट ऐसी कॉस्ट दैट कंटिन्यू रहती है अगर कोई प्रोडक्शन भी ना हो। जिस तरह अगर एक फैक्ट्री है उसका किराया है तो वो आपको वो भरना पड़ेगा, फिक्स्ड कास्ट वो रहेगी अगर कोई प्रोडक्ट आप बना भी नहीं रहे। जिस तरह है डेप्रिसिएशन होगी, प्रोडक्ट और प्रोड्यूस डेप्रिसिएशन, टैक्सेस हो गए, डेट हो गए, मॉर्टेज हो गया, पेमेंट हो गई, etc. Variable costs that vary with the volumes of the unit produce, labor, material, portion of the utilities। यानी वेरिएबल कास्ट वो होती है वो वेरी करती रहती है, वॉल्यूम यूनिट पे डिपेंड करता है। अगर आपने यूनिट ज़्यादा बनाना है तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, उसमें लेबर ज़्यादा ज़रूरत होगा, मटेरियल ज़्यादा ज़रूरत होगा, पोर्शन यूटिलिटीज़ ज़्यादा होंगी। Planning service capacity need to be near customer, capacity or location are closely tied। Capacity और location closely tied होते हैं। Inability to store services, capacity must be matched with the timing of the demand। capacity को timing of demand यानी 6 मंथ के बाद इतनी डिमांड होगी तो कैपेसिटी उसके मुताबिक आपको करनी पड़ेगी। डिग्री ऑफ द वोटेलिटी ऑफ डिमांड, पीक डिमांड पीरियड को कहते हैं। द कोस्ट वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम इन यूनिट, अमाउंट एंड वॉल्यूम इन यूनिट। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट होती है, आपको पता है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये आ रही है और हमारे पास ये फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है, तो इसका जो हमारे पास रिलेशनशिप ये बन रहा है। टोटल अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ यूनिट, टोटल रेवेन्यू अमाउंट के बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम ऑफ यूनिट भी हमारे पास बढ़ रहे हैं। कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप है ये। कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशन अमाउंट है और ब्रेक इवन पॉइंट है।
तो स्टूडेंट आपने देखा है कि यहाँ पे हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट है, टोटल रेवेन्यू का प्रॉफिट है और टोटल कॉस्ट, ये यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है। तो ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन चार्ट, कॉस्ट इन डॉलर एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लॉस है और यहाँ पे ये दोनों मिक्स हो रहे हैं और ये प्रॉफिट है। जितना लॉस है उतना प्रॉफिट है। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट इक्वल आ रही है टोटल रेवेन्यू यहाँ पे। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट है। ये टोटल कॉस्ट हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया। नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का तरीका फार्मूला ये है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ओवर वन इंटरेस्ट प्लस वन इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ years. I is interest, P is present value, and F is future value. Process planning is the machine tools design and schedule and production control. And last in the assignment, students, what are the stages of capacity planning process? Capacity planning process में अपने steps लिखने हैं, stages लिखने हैं, and which stage you will recommend is most important, और आप क्या recommend करेंगे कि ये stage most important है. Thank you student for giving valuable time. So kind of you.